Hi and welcome to the Skeptic Show. Today I have a very special guest with me. Today I have Vijendra ji. He is the co-founder of my favorite YouTube channel, Epified, a channel about Hindu mythology and Indian history. This is a channel where I learned Mahabharata, the 10-part series, favorite series. He's also the comic writer and host of the podcast show Vimo Talks. Through his podcast, he advocates for rationality, which is something that I think is lacking in our current political discourse. Hello, Vimoji. Welcome to the show. Hi, Shubham. Thank you for having me. Thank you. My pleasure. So, in India, there are many types of atheists. There are Gnostic or Hindu atheists, and I have a friend. He's a Christian, but he is not a believer. He does not believe in God. Yet he calls himself Christian atheist. The same is with my Hindu friends, and even me. I call myself Hindu atheist, and the same is with my one of my Muslim friend. So, how are these two ideas, which are incompatible, in the West, they are not compatible. They are always against each other. So how are these two ideas compatible with each other in this country? I don't think they are compatible because I don't think it makes any sense to call yourself a Hindu atheist or a Christian atheist or a Muslim atheist because they don't make any sense. Because religions are founded on certain basic beliefs. In Christianity, like you just mentioned that a friend of yours calls himself a Christian atheist. Christianity and atheism are actual opposites of each other. So he can either call himself a Christian or an atheist. And if he wants to call himself a Christian atheist, there is nothing illegal about it, obviously, and he's not breaking any rules. But it's like calling yourself, a vegetarian chicken lover. It Or a makes no sense. socialist It's a capitalist? Yeah, exactly. It like there are social democrats, but that's a complicated matter. Economic philosophies are a different matter. I'm saying that if you are going to call yourself something that actually makes sense. Because when I say I'm an atheist, I'm communicating very clearly my lack of belief in God or gods. When you say Christian atheist, a person will still have to ask you 4 or 5 more questions in order to understand what actually your position is on the matter of religion or God. So it makes no sense. Right. So his belief is that there is no God, but he goes to the church just for the cultural feel. And he grew up in a house where believing in religion was not a thing. So you can believe in God, you can not believe in God. It is totally up to you. The same is with me. Um, My question is, why can't your friend just call himself an atheist? Why that does is he a have to question call that I himself want a to Christian ask you. atheist? Why do people call themselves Hindu atheist or Christian atheist? I don't know why people. I am hearing Christian atheist for the first time, by the way. I'm hearing Christian atheist for the first Oh, time. I can understand there are people who try to remain attached to their cultural background while being called while calling themselves an atheist, and that I can understand, even though I don't agree with it. But as far as Hindu atheism is concerned, it's a different matter altogether. Because what Hindus do, like a Christian will not say that atheism is part of Christianity. yes. They will say that I'm calling myself a Christian atheist because of cultural baggage. But a Hindu will not say that. A Hindu will say that atheism is part of Hinduism, which is something I disagree with because it is not. There are schools of thought that are schools of philosophy that are part of India's history of philosophy, India's heritage of philosophy. Charvak is one of them. And Charvak school of philosophy was directly opposed to the Vedas, Yeah. right? They denied the Vedas, they rejected the Vedas, they rejected the authority of the Brahmins. If someone is a Hindu today, that word has a very clear definition. The definition of that word includes subscribing to the Brahminical worldview and believing in a certain number of gods, or participating in certain religious rituals, or believing that karma exists, or believing that rebirth is a thing, or believing in any number of superstitious beliefs. If someone says that I don't believe in the Vedas, I don't celebrate any festivals, I don't do any of these things, and I actually believe that gods don't exist, but I still want to call myself a Hindu atheist, it makes no sense. Why would you? And by the way, if you're calling yourself a Hindu atheist, if your argument is only that I'm a Hindu, I culturally identify as a Hindu and I'm an atheist, so I'm a Hindu atheist, why don't you call yourself a cooking atheist? Because you cook also, right? What do the two things have to do with each other?
If you are if you're a person who cooks and you're a person who cycles, and someone asks you, hey, what's your position on cycling? You'll say, I'm a cyclist. You won't say, I'm a cooking cyclist. All right. Or you won't say, I'm a cycling cook. The two things have nothing to do with each other. So the only reason, in my opinion, people call themselves Hindu atheists is because they are unwilling to let go of their Hindu identity. And that is problematic because it prevents them from criticizing Hinduism when it deserves to be criticized. A lot of these people are upper caste Hindus, and they want to hold on to their caste privilege. They want to hold on to their second names. They want to hold on to all the privileges in society that their religion or their culture guarantees them. None of these people will abandon that cultural identity, but they want to be called atheist because it's cool. And that is my problem with it. So I will give you my personal reason. I don't really call myself a Hindu atheist. I call myself a Nastika. And the reason is that when I, in my family, said that that I don't believe in God, they say that, oh, they said that, okay, you are a Nastika, that's okay. So that is my reason. Yeah. And So the word Nastika serves, go on. Yeah. And about God, I don't believe in God. I don't believe in reincarnation or karma. But I do celebrate festival, and I celebrate festival because they are fun. I celebrate Diwali, I celebrate Christmas, I celebrate Eid. I celebrate them because they are fun. Yeah. And celebrating festival does not make you a Hindu, because a Christian or a Muslim can also celebrate the same festival, right? Yeah. Then why do you have to call yourself a Hindu? You can just say, I'm an atheist who celebrates a festival. Usme kya hai? Because of the cultural connect. So I am from Bihar, okay? And in Bihar, you know that I am from the Mithila region. So the connection वहाँ पे रामायण का और वहाँ की आर्ट में आपको हर जगह दिख जाएगा. वहाँ की सारी पेंटिंग्स आपको रामायण की ही मिलेंगी. तो वो जो कल्चरल कनेक्ट होता है. Again, that cultural connect does not necessitate you being Hindu. A person can come from America and celebrate that same festival, have that same food, dance around in the same atmosphere, and be an atheist, right? Yeah. So there are some necessary things that you need to do in order to be a Hindu, and there are some unnecessary things. Celebrating a festival is an unnecessary thing. Like, you can celebrate a festival, even I do. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I celebrate a festival as a human being. Someone else from another religion or from no religion can also celebrate the festival. It does not make them Hindu, and it does not make me not an atheist. But there are certain things which I have to do with cultural backgrounds, which are necessary factors. Like, you mentioned Mithila, you mentioned Ramayana, etc. They are serious cultural, denominators. Because if you value that, then you should identify as Hindu. You do identify as Hindu, and it does not necessarily have to do with your lack of belief in God, because religion का जो problem है वो सिर्फ irrationality नहीं है. मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था. Religion का problem ये है कि it becomes a home to a whole lot of problems, including irrationality, but also politically discriminatory, laws, etc., etc. So when you identify as a Hindu atheist भी होगा, then you are identifying with all the people who are making laws to favor Hindus. And a lot of people who call themselves Hindu atheists don't want to leave that category. They don't want to leave that religious category. They don't want to think that, okay, if I just call myself an atheist, I will lose out on the stuff that Hindus are getting. And उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, as you mentioned. ओके, सो मेरा रीज़न ये है कि एक तो एक वहाँ पे वो कल्चरल कनेक्ट होता है, एंड बिकॉज आई लव स्टोरी. तो मुझे स्टोरी पढ़ना, स्टोरी को सेलिब्रेट करना वो बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने अभी आपको बताया था कि महाभारत वो मेरे लिए एक स्टोरी है, और जितना कनेक्ट मैं रामायण से फील करता हूँ उतना नहीं, बट उससे थोड़ा सा कम मैं द मिथ ऑफ सिफिसस से भी फील करता हूँ. किससे? मिथ ऑफ सिफिसस, कमुज का जो बुक है. हाँ, सिसिफस. हाँ. तो मेरे लिए स्टोरी बहुत ही पर्सनल चीज है, क्योंकि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ. सो मेरा ये कहना है कि अगर तुमको स्टोरीज को अप्रिशिएट करना है ना, तो अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में लाओ जहां पे तुम्हारा स्पेशल कनेक्ट किसी स्टोरी के साथ ना हो, क्योंकि उसके अलावा, उसके बगैर तुम स्टोरीज को ऑब्जेक्टिवली एंजॉय नहीं कर पाओगे. जैसा तुम्हारा है रामायण की तरफ, वैसा ही किसी क्रिश्चियन का बाइबल की कहानियों की तरफ होगा. हो सकता है वो गॉड में बिलीव ना, लाइक आइजैक एसिमोव, द साइंस फिक्शन राइटर, ही वाज अ ह्यूज फैन ऑफ द बाइबल.
He used to think that the Bible is a great collection of short stories, but he was also an out and out materialist atheist. So he wrote books about Bible actually, and his understanding of the Bible and his appreciation of the stories therein and the of Christian mythology was much greater than any Christians, right? और ये हो इसलिए पाया because he removed himself from the context of it. मेरा ये मानना है कि सारी रिलीजियस कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ कहानियां तो नहीं, मतलब कहानियां हैं, हर कहानी एक कहानी है। बैटमैन एक कहानी है, सुपरमैन एक कहानी है, रामायण महाभारत एक कहानी है। पर तुम्हारा जब तक एक कहानी के प्रति स्पेशल अटैचमेंट रहेगा, तब तक तुम उस धर्म को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट और क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। दैट इज माय पॉइंट। मैं तुमको अभी के अभी सब कुछ बदलने को नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द आंसर टू योर क्वेश्चन। हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो ऑब्जेक्टिवली आपने बोला, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्टली ऑब्जेक्टिव, आई एम नॉट, बट आई ट्राई टू बी। जैसे कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम लगता है, जैसे कि मैं कोई वेदास पढ़ रहा हूँ, उसमें ये मुझे लगता है नहीं ये वर्स तो बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, बहुत ही अजीबोगरीब है, तो आई विल पॉइंट इट आउट। अगर मैं मार्कंडे पुराण पढ़ रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीपल के खिलाफ कुछ अजीबोगरीब उनके अंदर फीलिंग है, तो आई विल पॉइंट इट आउट। अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई स्टोरी जहाँ पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन है और वो मेरे टेक्स्ट में ही है, देन आई विल पॉइंट इट आउट। मैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना पसंद करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 100% ऑब्जेक्टिव होना संभव नहीं होता है जब तक तुम रिलीजियसली आइडेंटिफाई करते हो। तुम जिस एंथुजियाज्म के साथ मार्कंडेय पुराण के किसी छंद को रिजेक्ट करने के लिए तैयार होगे, उससे कहीं ज्यादा तैयार होगे तुम कुरान को रिजेक्ट करने के लिए, बिकॉज अटैचमेंट नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हम इतने, मतलब मैं भी ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ बाय द वे। मैं आज तक रामायण पढ़ता हूँ तो मुझे अटैचमेंट फील होता है, और कोशिश करके उस अटैचमेंट को ओवरपावर करना पड़ता है। और कोशिश का पहला स्टेप होता है अपने आप को सूटेबली डिस्टेंस करना, और वो तब तक नहीं होगा जब तक अपने आप को हिंदू एथिस्ट बोलते रहेंगे हम लोग। तो आपका ये स्टार्ट कैसे हुआ? आप एथिस्ट कैसे बने और आप इन स्टोरी टेलिंग में कैसे आ गए? और ये एपिफाइड चैनल, क्योंकि वहाँ वो उसका जो महाभारत का सीरीज है, उसका पहला लाइन है कि वो साइकिलिंग वाला, वो लाइन जब, क्योंकि मैं नॉर्मली वीडियो स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं कोई दूसरा स्टोरी देख रहा हूँ ना, तो वहां पे है कि मैं पूरा देख लूंगा, वो बेकार भी होगा तभी, क्योंकि मेरे अंदर वो इचिंग होता है कि मुझे स्टोरी कंप्लीट करना है। बट महाभारत में क्योंकि मैं स्टोरी को बाय हार्ट जानता हूँ, वहां पे मुझे कुछ स्पेशल चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं शुरुआती 15 सेकंड में ही छोड़ दूंगा। बट उस सीरीज में स्टार्टिंग के 15 सेकंड में मैंने देखा, उसके बाद मैंने वो पूरा देखा, मैंने शेयर किया। तो आपका ये जो जर्नी था स्टोरी टेलिंग में, वो स्टार्ट कैसे हुआ? स्टोरीज तो मैं हमेशा से लिखता आ रहा हूँ, जब बच्चा था तब से लिखता आ रहा हूँ, सुपर हीरो स्टोरीज, फैंटेसी, साइंस फिक्शन स्टोरीज वगैरह। जहाँ तक एपिफाइड का सवाल है, मैं उसका को फाउंडर नहीं हूँ। एपिफाइड वाज रन बाय ए कंपनी इन मुंबई। मतलब वो एक मल्टी चैनल नेटवर्क था, और उस मल्टी चैनल नेटवर्क के अंदर बहुत सारे चैनल चलते थे। एपिफाइड उन चैनलों में से एक था, और उस चैनल को मैं चलाता था। मैंने जब वहाँ की नौकरी छोड़ी तो एपिफाइड, उसके बाद एपिफाइड पे और कुछ पब्लिश नहीं हुआ, बट दैट वाज देयर डिसीजन। जहाँ तक महाभारत का सवाल है, मैं मिथोलॉजिकल फिक्शन, फैंटेसी वगैरह लिखता हूँ। मैंने एक 10 इशू का कॉमिक बुक सीरीज लिखा है रावणायन करके, जो कि रामायण की कहानी है पर रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एपिफाइड का जो महाभारत था वो मैंने लिखा क्योंकि हमको 3 स्ट्रीम्स ऑफ कंटेंट चाहिए थे। एक थे छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियो जिसमें किसी एक टॉपिक को समझाया जाता था। एक था हफ्ते में एक बार आने वाला एक स्पेशल वीडियो, और दूसरा था महाभारत, जो कि हर हफ्ते एपिसोडिक वे में आता था। इट वाज द थिंग दैट वाज होल्डिंग द ऑडियंस टुगेदर व्हाइल द अदर थिंग्स वर बोनस मटेरियल। तो वहीं से शुरू हुआ, और महाभारत को तुमने मतलब बहुत पुरानी बात याद दिला दी, क्योंकि एपिफाइड किए हुए लगभग 4-5 साल हो चुके हैं। हाँ, और 4-5 साल से वहाँ पे कंटेंट भी कुछ नया आया नहीं है। हाँ, तो वो कंपनी मुझे लगता है इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। दैट्स व्हाई। हाउ डिड यू बिकम एन एथिस्ट? आपका वो प्रोसेस क्या था? क्या आप डायरेक्टली एथिज्म पे आ गए कि नहीं, अब मुझे रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट करना है, या नहीं फिर नहीं नहीं कुछ नहीं, अलग था? मैं तो इनफैक्ट आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई विद द इंडियन कल्चरल राइट विंग। मैं एक बीजेपी सपोर्टर था, मैं हिंदू था, मैं मानता था, मैं अपने आप को स्पिरिचुअल कहता था थोड़े टाइम के लिए। पर मेरा जो पॉलिटिकल कनेक्ट था वो लगभग 2016 में छूट गया, क्योंकि मैं जहाँ काम करता था वो नौकरी मैंने छोड़ दी और मैं मुंबई आ गया, जहाँ मैंने एपिफाइड पे काम शुरू किया। और चूंकि मेरा डायरेक्ट
अटैचमेंट रिलीजियस मटेरियल के साथ काफ़ी कम हो गया। धीरे 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 वो जो मेरे माइंड में जो आइडियाज़ थे हिंदुत्व को लेकर वगैरह, हम्म, ये मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने झटके से निकाल के फेंक दिया, वो अपने आप झड़ गए, क्योंकि हम्म, मेरा कांस्टेंट कांटेक्ट नहीं रहता था। और उनके झड़ने के बाद मैंने नोट किया कि ये आइडियाज, हिंदुत्व के लिए सपोर्ट, ये समझना कि हिंदुत्व एक अच्छी चीज है, ये समझना कि हिंदुत्व देश के लिए अच्छी बात है, ये सिर्फ इसीलिए सोच रहा था मैं क्योंकि मैं अपने रिलीजन के साथ काफी आइडेंटिफाई करता था। और जब वो आइडेंटिफिकेशन हट गया, और मैं उसी दौरान यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देख रहा था जहाँ पे डिबेट्स और डिस्कशन हो रहे थे फिलोसफी पे, मैट डेलंटी के और कॉस्मिक स्केप्टिक वगैरह के। तो मेरा रुझान धीरे धीरे उस तरफ शुरू हुआ, और लगभग 2017-2016 के बीच में कहीं मैंने अपने आप को एथीस्ट समझना शुरू कर दिया। और उसके 4-5 साल बाद मैंने एथीज्म के ऊपर एक्चुअली कंटेंट बनाना शुरू किया, जो कंटेंट आप अब देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे लाइव स्ट्रीम्स में, पॉडकास्ट वगैरह में। हम्म। ऐसे ही हुआ। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए था कि जब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दादा दादी को देखा, तो फिर मरते हुए देखा, तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। तो मुझे बहुत ही क्रूर लगा, और फिर वहां से मेरा बिलीव गॉड में धीरे धीरे कम होते गया। और फिर एक टाइम आया कि मुझे लगता था कि हाँ गॉड है, पर वो इंटरफेयर नहीं करेगा मेरे लाइफ में। तो मेरे लिए डीइज्म। पूजा करना, हम्म। हाँ, तो मेरे लिए पूजा करना, ये सब करना का कोई सेंस बनता नहीं है। अपना काम करना है और अपनी जिंदगी अपने हाथ में है। फिर वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ वहां से। बट डीइज्म ज्यादा समय तक रहता नहीं। डीइस्टिक जो आइडियाज हैं कि ब्रह्मांड का कोई निर्माता था और कोई ईश्वर है, पर वो ईश्वर ने सिर्फ ब्रह्मांड को बनाया और कुछ नहीं किया, ये आराम से झड़ जाता है। इसको मतलब हाँ, रिलीजन रिलीजन परसिस्ट इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे इमोशनल रीजंस होते हैं जो हमको बांध के रखते हैं। पेरेंट्स, 50 तरह के रिचुअल, साल में कई फेस्टिवल्स वगैरह जो हमको रिमाइंड करते रहते हैं कि हम इस ग्रुप या इस ट्राइब का हिस्सा हैं। डीइज्म मतलब ईश्वर है पर ईश्वर कुछ करता नहीं है, ये जो विश्वास है, इसको बांधे रखने के लिए कोई इमोशनल रीजन होता नहीं है। इसलिए जो भी डीइज्म पर पहुंचता है वो कुछ दिनों बाद एथियस्ट बन ही जाता है। हाँ। और आप अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे थे, एंड व्हेन आई वाज अ किड, उस टाइम में रिलीजियस होना कूल बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। मगर उस जब रिलीजियस होना कूल नहीं था, तो उसके बाद लोग स्पिरिचुअल होने लगे, और आज के मेरे जनरेशन में लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। और क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजन आप रिलीजियस हो नहीं सकते क्योंकि आपको कूल रहना है, पर आपको वो फेथ चाहिए, तो आप फिर स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हो। तो क्या ये हम्म। स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न डे रिलीजन है? नहीं, स्पिरिचुअलिटी वही एंशियंट डे रिलीजन है, बस नया नाम है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। स्पिरिचुअलिटी इज रिलीजन, देयर इज नो डिफरेंस। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं उनको स्पिरिचुअल का मतलब ही नहीं पता होता। लाइक व्हाट इज हाँ, योर डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आई पर्सनली, मैं जिससे भी बात करता हूँ जो भी कहता है मैं स्पिरिचुअल हूँ पर रिलीजियस नहीं हूँ, वो यही कहता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, और फिर उनसे पूछता हूँ कि स्पिरिचुअल मतलब, तो उनको नहीं पता होता है। नोबडी, इट्स अ रैंडम वर्ड, नोबडी एक्चुअली नोज व्हाट इट मीन्स। हर किसी के लिए अलग मतलब है। क्या ये थोड़ा सेकुलराइज वर्जन ऑफ रिलीजन है स्पिरिचुअलिटी? नहीं, बिल्कुल। यहाँ इंडिया में तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हिंदू हैं। हाँ, दे इंडिया में दे तो दे वैसे ही। फंक्शन ऑन हिंदू आइडियाज, राइट? हम्म, आत्मा और मैनिफेस्टेशन और टैरो का, दीज आर लाइक एक ऐसा कोई एक अमेलगम बन गया है जो थोड़ा बहुत वेस्ट से उठाया है, थोड़ा बहुत ईस्ट से उठाया है, थोड़ा बहुत इस्लाम से उठाया है, थोड़ा बहुत जापानीज और चाइनीज रिलीजियस आइडियाज से उठाया है, और उसको घोल मिला के कुछ एक बना लिया है। ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने ना रिलीजन को कभी ढंग से पढ़ा और स्टडी किया, और ना कभी इतनी हिम्मत जुटा पाए कि उसको रिजेक्ट भी कर सके। तो वो त्रिशंकु बन के रह जाते हैं। एक, मैं हम्म, रिलीजन के अंदर नहीं जाना चाहता, पर मैं रिलीजन को पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहता, हम्म। इसीलिए मैं अपने आप को आज से स्पिरिचुअल बोलना शुरू करूंगा, और और वही रहते हैं और आसमान में क्या। लटका रहूंगा। हाँ, बस हवा में तैरते रहते हैं। अभी आपने बोला मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर कोई मुझे बोलता है कि वो आत्मा में बिलीव करता है, उसका कोई रीजन, तो मैं समझ भी जाऊंगा कि हाँ चलो ठीक है, तुम एक रिलीजियस आइडिया पे ऑपरेट कर रहे हो, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पर मैनिफेस्टेशन का क्या लॉजिक है? तुम सोचोगे वो हो जाएगा? आई मीन, क्रिंज नहीं लगता ये चीज बहुत ज्यादा? हाँ बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन का मुझे लगता है कि जो एक किताब आई थी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी द सीक्रेट करके, हम्म, उसकी वजह से इसका बहुत बड़ा मतलब बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ा। और उसका बेसिस ये है कि जो भी हम करते हैं, एक समय था जब मैं भी इस पर विश्वास करता था, बाय द वे। जब मैंने कहा ना, मैं हमेशा से एथीस्ट नहीं था, एक समय था जब मैं इसके ऊपर बहुत विश्वास करता था।
पर द प्रॉब्लम इज दैट इसका रूट क्या है? इसका रूट है कि जो भी चीजें होती हैं दुनिया में हमारे हम्म। द्वारा, हम्म। वो होने से पहले हम उनके बारे में सोचते हैं। अगर हम हम्म। सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? राइट? हम्म। मैंने मतलब मेरे सामने खाना प्रकट तो नहीं हो जाएगा, मैं खाने के बारे में सोचूंगा, फिर या तो मैं पकाऊंगा या फिर ऑर्डर करूंगा, और वो काम होंगे, ये सोच होगी, उसी के बाद काम होगा। तो किसी ने इसी को लेके बलून की तरह फुला दिया फुला दिया फुला दिया, और बोला कि अभी मतलब मैनिफेस्टेशन से ही सब कुछ हो जाता है। पर ऐसे कई लोग हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हैं और फिर भी इसको नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, काम तो करना पड़ेगा भैया, खाली सोचने से थोड़ी हो हम्म। जाता है। तो ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, हम्म। देन ग्रेट। मतलब तुम्हारा गोल है कि तुम सपोज तुम सिंगर बनना चाहते हो, तुम्हारा गोल है, और तुम हर रोज अपने आप को कहते हैं मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ। उसका एडवांटेज ये है कि जो मैसेज तुमको पूरी दुनिया से मिल रहा है कि तुम दुर्बल हो, तुम में कैपेसिटी नहीं है, तुम में टैलेंट नहीं है, तुम उससे लड़ने के लिए अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो, हम्म। एंड दैट विल कीप यू फोकस्ड। हाँ। बट सिर्फ अपने आप को ये बोलने से कि मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ, तुम सिंगर बन नहीं जाओगे। उसके लिए तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट इज द फॉल्ट देयर। मुझे लगता है कि जो एफर्मेशंस होते हैं, लोग अपने आप को बोलते हैं, ये हम्म। सेल्फ हिप्नोसिस का एक तरीका है, एक तरह से। मैं हिप्नोटिस्ट नहीं हूँ, पर मैं हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट से कभी कभी बात करता हूँ अपने चैनल पर। मुझे लगता है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना एक अच्छी बात है, पर हम्म। यह समझना कि मोटिवेशन अलोन विल गेट थिंग्स डन इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इनफैक्ट कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं मोटिवेशन के। यूट्यूब पे हर रोज 20 बार मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और करेंगे घंटा, कुछ भी नहीं हाँ, करेंगे, ये मैंने इस बहुत उम्मीद देखा है। में कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, सब कुछ उखाड़ लूंगा मैं। ऐसे थोड़ी होता है, तुमको काम करना पड़ेगा काम तो असल में। करना पड़ेगा। ये या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अल्ट्रा मैक्स प्रो। या उससे नहीं होता है कुछ। अल्ट्रा मैक्स प्रो। आप ये जो भी बोले ना, काम करना पड़ेगा। आप, मुझे लगता है कि आप मेरे एज ग्रुप वालों को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। आप फॉलो करना मैं स्टार्ट करो, आपको मैं पता तुम्हारे चल एज ग्रुप जाएगा। के लोगों को इंस्टाग्राम के अनफॉलो कर देता हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे क्या चल रहा है। इतना आई नो, क्रिंज आई नो। कंटेंट आता है 20-20 सेकंड का। देखने के हम्म। बाद मेरा लगता है कि अब सिर फट जाएगा, मैं म्यूट कर देता हूँ। इससे अच्छा भाई तुम हाँ। मेरे को पॉलिटिकल नॉनसेंस दे दो, वो मैं टॉलरेट कर लूंगा। ये नहीं, देखो तुम अपने आप को देख लो ना, तुम एक अच्छा खासा पॉडकास्ट चला रहे हो जिसपे कई वेल नोन लोग आ चुके हैं, और तुम अभी हॉस्टल में, अपने अपने कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के ये पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर तुम उम्मीद करते हैं मैं पॉडकास्टर बन सकता हूँ, मैं पॉडकास्टर बन सकता हूँ, और माइक नहीं लेते और इंटरव्यू सीखते नहीं और लोगों को हम्म। कांटेक्ट नहीं करते, तो ये होता नहीं कुछ भी। हम्म। खाली सोचने से नहीं होता, असली काम ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू डू समथिंग। हम्म। और अभी आपने बोला फेथ रखना। सो हम्म। हैविंग फेथ कैन गिव यू स्ट्रेंथ, बट अगर आप एथीज्म में आते हो, तो ये थीज्म में तो आपके पास गॉड का है कि हाँ, ईश्वर है, अल्लाह है। अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, ईश्वर मेरी मदद करेंगे, ईश्वर मेरा ध्यान रखेंगे। बट अगर आप एथीज्म में आते हो तो वो जो फेथ का एलिमेंट होता है, जो कि आपको क्रूशियल टाइम पे आपको स्ट्रेंथ देगा, वो तो हट जाता है। तो वहां पे कोई अल्टरनेटिव है इसका? देखो, फेथ का ऑल्टरनेटिव ढूंढने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, लाइक मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ, क्या सच इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। क्यों? सच क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब ऐसा तो है, ये तो कम से कम मानोगे ना कि एक सच्ची चीज पर विश्वास करना एक झूठी चीज पर विश्वास करने से बेहतर हाँ। है ना? हम्म। तो मेरा जो पोजीशन है एथीज्म का, वो ये है कि आई वॉन्ट टू बिलीव थिंग्स दैट आर ट्रू। हम्म। फेथ इज एन अनरिलायबल मेथड। फेथ हम्म। इज एन अनरिलायबल रिलायबल मेथड, बिकॉज हो सकता है जो चीजों में कोई विश्वास करता है वो सच हो, पर यह भी हो सकता है कि वो झूठ है। हम्म। हमें ये पता करने के लिए कि वो चीज सच है या झूठ है, फेथ से ज्यादा कुछ चाहिए, है ना? हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी तुम्हारे पास आता है और कहता है कि आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स, राइट, एंड हिज हम्म। नेम इज याहवे। देन अनदर पर्सन comes and says I believe that God exists, his name is Allah, right? हम्म। दोनों को पूरा विश्वास है अपने क्लेम पर हम्म। तुम्हें नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। खाली इस बेसिस पर कि दे हैव फेथ, यू कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, राइट?
You need something Yes. more than that. You need some proof, you need some verification, you need some evidence. So faith is an unreliable method. Maybe one of them is right. Both of them cannot be right, by the way, because there are plenty of contradictions. Maybe one of them is right, right? Hmm. And जो भी right है, उसके अलावा जो दूसरा बच्चा वो wrong है. So Hmm. no matter who is right, no matter who is wrong, faith alone is not a good way to establish whether they are right or not. And even they don't know. मैं कई धार्मिक लोगों से बात कर चुका हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ईश्वर है, तुमको कैसे पता? घुमा फिरा कर एक ही बात पे आती है बात, और वो है मेरा विश्वास है. मैं कहता हूँ कि भाई मुझे डाउट नहीं है कि तुम्हारा विश्वास है, बिल्कुल तुम्हारा विश्वास है, और खुश रहो विश्वास के साथ, पर तुम्हारा विश्वास काफी नहीं है सच जानने के लिए. हाँ. As an atheist, my goal is the truth. If I cannot know the truth, if I do not know the truth, then I will say that I do not know the truth. I will not make a claim simply on the basis that I have faith. लोगों को मन की शांति के लिए फेथ की जरूरत होती है, राइट? हम्म. पर उसी फेथ का इस्तेमाल करके लोग बहुत सारे अजीबोगरीब काम भी करते हैं, जैसे धोखाधड़ी, हम्म. जैसे बम बना के लोगों को उड़ा देना, लोगों को जान से मार देना, लोगों को ऑपरेस करना, डिस्क्रिमिनेट करना, वगैरह वगैरह. पाँव सो के नीचे फेथ, नींबू रखना. एग्जैक्टली. आप अगर वो वीडियोस देखे हो यूट्यूब पे? नहीं, ये कौन सा वीडियो है? अरे एक बाबा है जो कि पाँव के नीचे नींबू रखने को बोलते हैं, उससे लड़की मिलेगी, टाइप टाइप का वीडियो. अच्छा, इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका बताते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस उनके बात को मान लो क्योंकि वो बाबा जी बस. हैं. सो अगर फेथ को हमने एक अच्छा मेथड मान लिया ना, हम्म. तो हमें वो सब भी सही मानना पड़ेगा. मतलब लोग कहते हैं ठीक है, मेरे पास फेथ है और मुझे मन की शांति मिलती है. हाँ. ओके, तुम्हारा फेथ सही है. मेरे पास फेथ है, उस आदमी को मार देना चाहिए. ओके, उसको मार देते हैं. मेरे पास फेथ है, देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए. ओके, क्योंकि ये जो मेथड है, ये अनरिलायबल मेथड है. हम्म. मे बी सम पीपल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट, but many people can also get something bad out of it. So the हाँ. method is unreliable, and therefore my problem with faith. हाँ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं. कोई भी कुछ भी बोल सकता है फेथ के नाम पे. लोग करते हैं, लोग खून कर डालते हैं, बोलते हैं भगवान ने मुझे बोला था. हाँ, जबकि वो खुद खून करना चाहते थे. हम्म. पर इससे या उनको कोई और प्रॉब्लम थी, मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग डिफिकल्ट. ऐसा भी होता है कि कई लोगों को मानसिक तकलीफें होती हैं, पर लोग उसके ऊपर धर्म का तड़का लगा देते हैं, और फिर उनको वो मदद नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए थी. जैसे हमारे यहाँ जो है माता आई है, हम्म. ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का भी होता है कि दे स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स. एंड मुझे लगता है कई धर्मों में यह है. कुछ लोग अजीबोगरीब मेंटल रिएक्शंस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने बिहेवियर से, और मुझे लगता है कि उनको एक्चुअली मदद की जरूरत है, उनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, जो उनको नहीं मिलती, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन फेथ दे देते हैं. हो गया, नहीं भगवान आए, ये एंजल्स आए, या कुछ तो है बस, और फिर उनको वो मदद नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए. हाँ, तो यहाँ पे लॉस भी तो हो रहा है. हम्म. पर how do we define religion? Do we define religion based on the sacredist and all the sophisticated philosophy, or do we define religion by what people follow? Especially in the case of Hinduism. I would like it to be defined according to what people do, not follow. हिंदुइज्म वो है जो हिंदू करते हैं, क्रिश्चियनिटी वो है जो क्रिश्चियंस करते हैं, इस्लाम वो है जो मुसलमान करते हैं. अगर उनके काम अच्छे हैं तो धर्म अच्छा है, अगर उनके काम बुरे हैं तो धर्म बुरा है. मेरा ये कई लोगों का कहना है कि हमको एक धर्म का डेफिनेशन देखने के लिए उसके होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए. आई डोंट थिंक दैट मैटर्स, बिकॉज होली स्क्रिप्चर्स को आधे से ज्यादा हिंदू खुद नहीं पढ़े हैं, और बाइबल को आधे से ज्यादा क्रिश्चियंस खुद नहीं पढ़े हैं, और कुरान को आधे से ज्यादा मुसलमान नहीं पढ़े हैं. So at the end of the day, the only thing that matters on the ground is people and how they behave. जैसे अभी मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि रिलीजन बुरा है, तो हिंदू बोलते हैं कि हिंदू रिलीजन नहीं है, एक धर्म है. मतलब अभी क्या फर्क पड़ता है? तो अभी सड़क पे जाके 5 लोगों को पूछना तुम्हारा धर्म क्या है, वो तुमको अपना रिलीजन ही बताएंगे. तुम 5000 साल पहले डेफिनेशन पकड़ के क्यों यूज कर रहे हो आम बोलचाल में? अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा और हम दोनों 15 मिनट तक एक एप्पल के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि मेरा एप्पल से मतलब ये था, तो वो दैट वाज नॉट ए यूजफुल कॉन्वर्सेशन, राइट? बिकॉज पूरे टाइम तुम सोचते रहे कि तुम एक फल की बात कर रहे हो और मैं भी एक फल की बात कर रहा हूँ. हमें वो वर्ड यूज करने चाहिए जो सबकी समझ में आते हैं. और धर्म का मतलब रिलीजन है. हम धर्म के 50 फिलोसॉफिकल रीजन निकाल लेंगे, स्क्रिप्चर्स में चले जाएंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पर उससे कुछ फायदा नहीं होगा.
अगर हमको एक यूजफुल कॉन्वर्सेशन करनी है जिसका कोई यूजफुल कंक्लूजन निकले, जिससे कि लोगों का फायदा हो और दुनिया बदले अच्छी डायरेक्शन में, तो हमको नॉर्मल लैंग्वेज का नॉर्मल लोगों की तरह इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कंटेम्पररी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और उस बिहेवियर में किसी धर्म का क्या दिखता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि दिस इज नॉट ट्रू इस्लाम और दिस इज नॉट ट्रू हिंदुइज्म, मैं उनके ऑपोजिशन में जाता हूँ। मैं बोला नहीं, अगर अगर लोग एक तरह से बिहेव कर रहे हैं तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये उनका धर्म है, क्योंकि मैं उनके धर्म पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं उनके हम्म काम देख के बताऊंगा कि उनका धर्म क्या है। मैं उनके हम्म स्क्रिप्चर्स पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही तुम्हारे पास है। हम्म। आपके क्या थॉट्स है लॉ ऑफ कर्मा पे? व्हाई इज लॉ ऑफ कर्मा फॉल्स और रॉन्ग? देर इज नो रीजन टू थिंक दैट इट इज ट्रू। हाँ दैट्स वाई मतलब वो तो है, वो तो मैं तो देर समझ इज नो जाऊंगा, पर एविडेंस। हाँ, ऑडियंस के लिए बता दो कुछ। ऑडियंस के लिए यही है कि किसी भी चीज को सच मानने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि उसको सच मानने का कारण क्या है, और कर्म को सच मानने का कोई कारण नहीं है। दैट्स इट। अगर मैं किसी से भी पूछूं, अगर मैं तुमको पूछूंगा भी कि तुम किसी अच्छे आदमी को जानते हो जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे को। और किसी बुरे आदमी को जानते हो जिसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सारे को। बस हो गया। दाऊद इब्राहिम। प्रूफ मिल गया। एग्जैक्टली, प्रूफ मिल गया। ऐसे कई लोग हैं जो कि इनक्रेडिबली घटिया लोग हैं, पर उनको पनिशमेंट नहीं मिली। और ऐसे कई लोग हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, पर उनकी जिंदगी बहुत बुरी बीत रही है। हम्म सो वही हो गया ना। तुमको कर्म का और कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब तुमको कर्म को साबित करने के लिए पुनर्जन्म का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं, हम्म इस लाइफ में नहीं हुआ पर अगले लाइफ में मिल जाएगा, और उसका फिर से कोई एविडेंस नहीं है। हम्म राइट, दैट्स इट। कोई भी चीज सच है या नहीं, ये जज करने के लिए एविडेंस चाहिए, और अगर एविडेंस नहीं है तो उसको सच मानने का कोई कारण नहीं है। हम्म। सो ये प्रोसेस क्या होता है? जैसे कोई भी एक क्लेम है, उसको हम्म वेरीफाई करने का आपका प्रोसेस क्या होता है? वेरीफाई करने का मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है। जो क्लेम करता है उसका काम है एविडेंस देना। अभी अगर तुम्हारे पास कोई आएगा और बोलेगा कि मैं याहवे में विश्वास करता हूँ, तुम उसको पूछोगे क्यों, है ना। हम्म और उस क्यों का जवाब देना उस आदमी का काम है। वो आके तुमसे ये नहीं कह सकता कि तू साबित कर कि याहवे नहीं है, हाँ। है ना। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, जो क्लेम करता है उसका काम है साबित करना, कि उसका काम है एविडेंस देना अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। मेरा काम नहीं है। वैसे तो हमको हर चीज, मतलब तुम ये थोड़े, जो तुमसे बात कर रहा है तुम उसको बोलोगे क्या तू साबित कर सकता है कि तू मर्डरर नहीं है। वो अभी वो बोला हाँ रुक मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वो अपनी पूरी जिंदगी का रिकॉर्डिंग लेके आता हूँ, तो हर सेकंड देखना और डिटरमिन करना है कि मैं मर्डर नहीं हूँ। उसका काम नहीं है। अगर तुम हम्म उसको मर्डरर होने का एक्यूजेशन दे रहे हो, तो तुम्हारा काम है ये साबित करना कि तुम दिखाओ ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग है कि तूने मर्डर किया है। जो हम्म क्लेम करता है उसका काम होता है एविडेंस देना। हम्म मेक सेंस। मोरालिटी का बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोरालिटी? क्या रिलीजन से मोरालिटी आया है? आई वाज लिसनिंग टू कुशल मेहरा चारवाक पॉडकास्ट पे, उनका एक एपिसोड था, व्हाई शुड वी बी गुड इन ए गॉडलेस यूनिवर्स। तो वहां पे वो बोल हम्म रहे थे कि मोरालिटी इवोल्यूशन का पार्ट है। हम या लोग इवॉल्व हो गए हैं और वहीं से हमारा मोरालिटी आया है। वहीं पे हम लोग ये फिक्शन क्रिएट किए हैं कि वी शुड बी गुड टू अदर, क्योंकि कॉपरेशन में ही हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। या तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ मैंने मोरालिटी? मोरालिटी का बेसिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेल बीइंग ऑफ पीपल। हमने इसीलिए मॉरल रूल्स बनाए हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन, हम लोग, हमारे जो आदि मानव, हमारे जो पूर्वज थे, वो ग्रुप्स में रहते थे। हम्म और ग्रुप्स में रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कुछ बिहेवियर्स करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर इज बैड। अगर हम्म एक ग्रुप के लोग एक दूसरे को जान से मारने लगे तो वो ग्रुप लास्ट नहीं करेगा और हम्म लोग बिखर जाएंगे। हम्म और अगर कोई मर्डर करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ दूसरे लोगों को मैसेज जाएगा कि अगर अ, कोई मर्डर करता है तो उसको, उसके साथ हम लोग नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे, उसके साथ हम लोग उसको पनिशमेंट देंगे। सो ये जो रूल्स हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मर्डर मत करना, चुराना मत, सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, ये सब रूल्स धीरे धीरे मॉरल कोड बन गए। और हमको प्रकृति में मोरालिटी, इस प्रकार का मॉरल कोड कहीं नहीं दिखता है इंसानी सोसाइटी के अलावा। सो मोरालिटी का जो रूट है वो वेल बीइंग है। रिलीजियस मोरालिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आमतौर पर रिलीजियस लोग जब मोरालिटी की बात करते हैं तो उनका बेसिस वेल बीइंग नहीं होता, उनका बेसिस गॉड या कुछ सुपर नेचुरल होता है। एंड इवन दो, मतलब मैं मोरालिटी बोल रहा हूँ और वो मोरालिटी बोल रहे हैं, उनका मोरालिटी का मतलब कुछ और ही है। मैं जब मोरालिटी की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है समथिंग, अ कोड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
that is designed to maximize the well-being of human beings. और ये इवॉल्व भी तो हुई है ना, क्योंकि आज से अगर 300 साल पहले अगर मैं बोलता कि मुझे स्लेव रखने हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ ठीक है रख लो, बट अगर आज मैं बोलूंगा तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टुडे. The code itself has not evolved, our definition of human beings has evolved. उस समय भी लोग कहते थे कि ईश्वर ने हर किसी को एक जैसा बनाया है, पर वो हर किसी के डेफिनेशन में कुछ लोग नहीं आते थे. हाँ. अब आने लगे हैं. मुझे लगता है कि आने वाले कुछ 100 सालों में हर किसी के डेफिनेशन में जीव जंतु भी आने लगेंगे. और अभी भी हमारे पास ऐसे कानून हैं कि एनिमल्स को टॉर्चर करना गैर कानूनी है, एनिमल्स को मारना गैर कानूनी है. मतलब देयर आर रूल्स इन द इंडियन पीनल कोड अबाउट एनिमल अब्यूज आल्सो. सो ये जो डेफिनेशन है ऑफ एवरीवन, इट इज एक्सपैंडिंग. हो सकता है एक जमाना आए जब पृथ्वी पे एलियंस आ जाए और हम लोग में से कुछ लोग उनको मारने की बात करें और कहें कि हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि एलियंस को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे कानून इंसानों के लिए बने हैं. और तब कानूनों को फिर से बनाया जाना, फिर से रिफॉर्म करना पड़ेगा टू इंक्लूड दोज पीपल इन लीगल कोड्स, इन डेफिनेशंस ऑफ मोरालिटी. और एनिमल राइट्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को लोग ऐसा बहुत जगह होता है इंडिया में कि कुत्ते को बिल्ली को मारा जाता है, तो वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा. मारा तो चिकन और मछली को भी हो जाता है. हाँ, पर वो मोरालिटी ऐसा कोडेड है कि वहां पे नजर नहीं जाता, उधर नजर चला जाता है. नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये चीज. मुझे लगता है हाँ, नहीं, एक्चुअली उसका कारण ये है कि हम लोग इसको अगर तुम कॉस्मिक स्केप्टिक के यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो, बाय द वे, मैं खुद वीगन नहीं हूँ, सो मैं थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल हूँ. मैंने मीट खाना छोड़ दिया है, पर मैं अभी भी एनिमल प्रोडक्ट्स खाता हूँ, जैसे अंडे और दूध. पर हम लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और अपने आप को एनिमल लवर कह देते हैं, पर साथ ही साथ चिकन, मछली, प्रॉन वगैरह खाते रहते हैं. सो क्लियरली एनिमल लवर इज द रॉन्ग लेबल. If someone is a dog lover, call yourself a dog lover. If you're a bird lover, call yourself a bird lover. But animal well-being के बारे में बातें करता और उसके साथ ही साथ चिकन वगैरह खाना, मतलब मैं तो ये जो हिंदू जो कि गोरक्षा ब्रिगेड है उनसे भी पूछता हूँ कि तुम, अच्छा तो गायों के प्रति जब टॉर्चर होता है तो उनको बुरा लगता है, बकरियों का क्या, उनको तो मजे से खा जाते हो. So that is also a kind of hypocrisy. और मैं भी नॉनवेज खाता हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक एनिमल का लाइफ दूसरे एनिमल के लाइफ से ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है. इसका रीजन क्या है कि अगर मेरे सामने में अगर कोई चिकन को मार रहा है तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बहुत होगा तो आंख उधर कर लूंगा मैक्सिमम. पर अगर वहीं पे कोई डॉग को कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होगा मेरे लिए. वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने ब्रेन में जो फोल्डर्स बना रखे हैं ना, हम सब ने अपने ब्रेन में जो फोल्डर्स बना रखे हैं, उसमें एक एक्सेप्टेबल फोल्डर है और एक अनएक्सेप्टेबल फोल्डर है. और इवोल्यूशनरीली आमतौर पे ज्यादातर हमने कुत्तों को खाया नहीं है, इसीलिए हमने कुत्तों के मारे जाने को एक्सेप्टेबल फोल्डर में नहीं रखा है, हमने अनएक्सेप्टेबल फोल्डर में रखा है. और चिकन्स को हम लोग खाते हैं, मारे जाते हुए देखते हैं, मार्केट में जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में दिखता है एक चिकन के कपड़े पहने हुए आदमी खुद चिकन बेच रहा है. तो सोसाइटी हमें प्रोग्राम करती है मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजों को अच्छा मानने के लिए और बहुत सारी चीजों को बुरा मानने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, कई लोग हैं जो अपने आप को एंटी कास्ट समझते हैं, पर वो फिर भी अपने बेटे बेटियों की शादी के समय मैट्रिमोनियल में कास्ट देखकर कैंडिडेट ढूंढते हैं. तो अगर तुम उन लोगों को जाके बोलोगे तुम कास्ट के पक्ष में हो या विरुद्ध हो, तो वो लोग साफ साफ बोलेंगे नहीं, कास्ट बहुत खराब चीज है. पर उनके बिहेवियर में ये जो चीज है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाके कास्ट के हिसाब से कैंडिडेट ढूंढना, ये उनके दिमाग में ये अनएक्सेप्टेबल नहीं है. सो हम लोग ऐसे कई बिहेवियर करते हैं हर रोज अपनी जिंदगियों में जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. हमें भी नहीं, क्योंकि हमें उस हद तक प्रोग्राम किया जा चुका है. जैसे अभी ये जो कई लोग हैं जो कि हिजाब की बात कर रहे थे कि ये पेट्रियार्कल है वगैरह वगैरह, इन्हीं लोगों के मुंह से ये कभी सुनने को नहीं मिलता कि सिंदूर पेट्रियार्कल है या घूंघट पेट्रियार्कल है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको पेट्रियार्कल का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इस्लाम के ऊपर फोकस करना है, अपने धर्म को क्रिटिकल नजर से नहीं देखना है. ऐसा थोड़ी है कि हमारे धर्म में पेट्रियार्कल बिहेवियर्स नहीं है, पर हमको दिखते नहीं है क्योंकि हमने अपने दिमाग को उस तरफ फोकस कर रखा है. मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था हारिस सुल्तान के साथ, और आपने वहां पर फ्री स्पीच के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली. मैंने भी तुम्हारा देखा उनके साथ इंटरव्यू, बहुत अच्छा इंटरव्यू था तुम्हारा वाला. ओह थैंक यू.
उस हारिस वक्त के मेरी साथ। फटी हुई थी क्योंकि मैंने पहली बार किसी बड़े गेस्ट को बुलाया था। नो, इट अब वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू, इट वाज अ वेरी नाइस इंटरव्यू। मेरी पूरी फटी हुई थी, मेरा पसीना चल रहा था अंदर में। नहीं, तुमने फिर भी काफी प्रोफेशनली कंडक्ट हाँ। किया उसको। आई लाइक योर पॉडकास्ट, आई लाइक द वे यू कंडक्ट द पॉडकास्ट। तुमने जो इंट्रोडक्शन मेल भेजा, प्रोफेशनली लिखा हुआ था, साफ साफ। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते। हम्म। मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोग जो लोग अप्रोच करते हैं, वो लोग चैट में हाय भेजते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मैं हाय बोलूं और फिर वो लोग मुझे बताएंगे। प्रोफेशनल मेल भेजना एक टैलेंट है, एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ इट। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं बात कर रहा था फ्री स्पीच के बारे में। तो मेरा हम्म। ये बिलीफ है कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि मेरा बस रीज़न ये है कि जो भी सक्सेसफुल कंट्री में है, अब मेरे पास कोई एक्चुअल केस नहीं मैं बना सकता हूँ, बट जो भी सक्सेसफुल कंट्री है, जो भी कंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वहाँ पे फ्री स्पीच है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल अमेरिका। पर हम्म। ये जो फ्री स्पीच एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये आइडिया 50 साल या 100 साल पुराना है, जब इंटरनेट नहीं था। आज हम्म। इंटरनेट आने के बाद सभी लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले कुछ प्रोफेशनल्स, यानी कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे अच्छे से, या पढ़े लिखना अच्छा वर्ड नहीं है, मे भी क्लासेस हो सकता है, पर मतलब कुछ लोगों के हाथ में था जो कि इन्फॉर्म थे इस टॉपिक के बारे में, और हम्म। वही कुछ हम्म। बोल सकते थे। तो हेट स्पीच का जो वो बड़ा सा बलून था, वो बहुत छोटा था, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे। मगर आज सबके हाँ। पास ये अवेलेबल है, और सबका मॉरल स्टैंडर्ड एक साथ एक जगह पे नहीं है, कुछ का कुछ हम्म। ज्यादा ही नीचे है। और उन हम्म। सभी के पास ये चीज, ये फ्रीडम है, और सोशल मीडिया पे निगेटिव चीज बहुत ज्यादा फैलती है। तो क्या फ्री दैट्स स्पीच ट्रू। एब्सोल्यूट होना चाहिए? नहीं, मैं आई यूज्ड टू बी ए फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। मैं अब वैसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि फ्री स्पीच के लिए एक ज़रूरी कैटेगरी है, और वो है एक फ्री सोसाइटी। जब तक फ्री सोसाइटी नहीं है, तब तक फ्री स्पीच का कोई मतलब नहीं है। अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और हम्म। कुछ लोग बहुत कुछ बोल पाते हैं और उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, और कुछ लोग थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो उनको 2-3 साल तक जेल में ठूंस दिया जाता है, तो उस सोसाइटी में फ्री स्पीच का कोई मतलब है ही नहीं। हम लोग भारत में इस समय एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ फ्री स्पीच को बहुत बड़ा डेंजर है, जहाँ जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया है, सिविक एक्टिविस्ट को जेल में डाला गया है, for things that are so small that they don't even matter. पर साइमल्टेनियसली रूलिंग क्लास के लोग, रूलिंग कैटेगरी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के लोग खुलेआम लोगों को जान से मारने की और बलात्कार करने की धमकियां देते हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। सो फ्री हम्म। स्पीच का कोई मतलब ही नहीं है जब तक हम एक फ्री सोसाइटी में नहीं रहते। अमेरिका में फ्री स्पीच का थोड़ा बहुत मतलब है, क्योंकि वह वहां पे फ्री फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली। यहाँ पे नहीं होता वो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज होते हुए भी, लोग अभी बात करते हैं बीजेपी के टाइम पे ये सब होने की। मैं मुझे 7-8 साल पुरानी बात भी याद है, जब 66A करके एक रूल लाया गया था यूपीए के टाइम पे, और लोगों को ऑनलाइन बातों की वजह से जेल में ठूसा जा रहा था। अभी बहुत हम्म। ज्यादा हो रहा है, हाँ। पर तब भी होता था, और उससे पहले भी होता था। इंदिरा गांधी के टाइम में भी होता था। भारत में फ्री सोसाइटी जब तक पूरी तरह से बन के बैठ नहीं जाती, तब तक फ्री स्पीच की बात करना हम लोग छोड़ एक बबल में कर सकते हैं। एक शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन के दौरान फ्री स्पीच की बात की जा सकती है, पर फॉर मोस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्री स्पीच का कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। और ये फ्री स्पीच में मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं हिस्ट्री भी देख रहा था, और मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हुआ था कि ये नेहरू जी ने किया था फर्स्ट अमेंडमेंट ला करके, क्योंकि या कुछ या कॉमेंट्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, बट आई डू रिमेंबर दैट ही आई डोंट नो व्हाई ही डिड इट। आई डू रिमेंबर दैट इट वाज इन हिज टाइम दैट दिस वाज डन। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन was to allow free speech. The first amendment of the Indian constitution was to disallow free speech. हम्म। Although I would agree that hate speech is a problem, and hate speech, like अगर 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 एक अगर एक आदमी एक जगह पे खड़ा है, और उसके उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े हैं, और तुम वहां पे जाके बोलोगे कि इसको मार डालना चाहिए अभी के अभी, दैट्स ऑल्सो फ्री स्पीच, राइट? बट इट्स ऑल्सो हेट स्पीच, बिकॉज तुम सिचुएशन को अपने शब्दों से वर्स कर रहे हो, तुम उस इंसान की जान को ज्यादा खतरे में डाल रहे हो। सो फ्री हम्म। स्पीच frequently devolves into hate speech, not just in India, in everywhere. And I think that is a category that should be kept in mind, especially in a society like ours, जहाँ पे रिलीजन के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। हम्म। तो फ्री स्पीच को कहाँ पे लिमिट करेंगे? क्योंकि ये मैंने कहीं पे सुना था किसी पॉडकास्ट पे, कि जब तक कॉल टू वायलेंस नहीं है, तब तक हम लोग को फ्री स्पीच को अलाउ करना चाहिए।
और वो भी डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस। या ये मैंने भी सुना है, बट आई डोंट थिंक कॉल्स टू वायलेंस आर ऑलवेज डायरेक्ट. देयर इज अ थिंग कॉल्ड डॉग व्हिstling, जो कि कई बार हमारे चैनल्स में की जाती है. जैसे एक प्रोमिनेंट न्यूज चैनल पे उन्होंने 50 तरह के जिहादों के बारे में एक ग्राफिक बना के दिखाया था, और उसके ठीक बाद कुछ लोगों ने मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट का मैसेज आउट बाहर किया, जिसका रिपरकशन हमें अभी तक देखने को मिल रहा है. तो जिसने वो किया था उसने तो डायरेक्ट वायलेंस की बात नहीं की थी, पर वो सोसाइटी में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था जानबूझकर, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को एक्चुअल नुकसान हो, और उस नुकसान में फिजिकल वायलेंस भी शामिल है. सो मैं फ्री स्पीच के बारे में बात करने से पहले, मैं एज आई सेड, फ्री स्पीच के बारे में बात करने से पहले हमें एक फ्री सोसाइटी को बिल्ड करना होगा, और एक फ्री सोसाइटी को बिल्ड करने का सबसे बड़ा मेथड है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना और सवाल उठाना उन लोगों पर जो पावर में हैं. जब तक ये नहीं होता हम लोग फ्री स्पीच की बात कर सकते हैं, 4 दिन तक कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वी आर नॉट दैट कंट्री वेयर फ्री स्पीच इज प्रोटेक्टेड. अगर फ्री स्पीच के नाम पर लोग हर रोज एक कैंपेन चलाएं अपमान का, हिंसा का, और जब उनको जवाब कोई दे तो बोले कि ये हेट स्पीच है, तो पावर का मिसयूज ही हुआ ना. और उस एटमॉस्फेयर में फ्री स्पीच के बारे में बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ओके. पर्सन है, उसका नाम है ए, ठीक है, हम्म. और वो एक रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है जो कि है एक्स। ठीक है, वो थियोक्रेटिकल ही क्रिटिसिज्म है, वो बोल रहा है कि ये देखो, ये सब बकवास बातें हैं, ये भी बकवास बात है और ये भी बकवास बात है। ये रिलीजन एक्स में बोल रहा हूँ कि ये कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो हम्म. वहां पे क्या है कि कुछ लोग इस चीज को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये देखो, ये तो इतनी गंदी गंदी चीजें हैं, और वो जा करके उस रिलीजन के फॉलोअर पे अटैक करते हैं। तो क्या जो वो क्रिटिसाइज कर रहा था वो इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम यह है कि तुमने ये नहीं बताया कि ए कौन था, एक्स क्या था, और ठीक है, जिस देश ए में ये ए हो मैं रहा हूं, है ए मैं वहां, हूं। और जिस देश में ये हो रहा है वहां एक्स धर्म के लोग ज्यादा हैं या कम है, क्योंकि पावर से फर्क पड़ता है. अगर एक, आई गिव एन एग्जांपल एंड आई मेक इट मच मोर क्लियर. सपोज ए एक ऐसे देश में है जहां वो खुद एक रिलीजियस मेजोरिटी से है, हम्म। और एक्स जो धर्म है वो एक माइनॉरिटी रिलीजन है. हम्म। तब उस आदमी का वो बोलना हो सकता है माइनॉरिटीज के खिलाफ वायलेंस जो है, सस्पिशन जो है, उसको बढ़ावा दे. इन हम्म। दैट केस इट शुड नॉट बी डन. Suppose A is a member of the minority who is criticizing a religion which is X, which is a majority religion, very powerful religion, a religion whose followers are in power at the center in that country. हम्म। Then that is valid criticism because there punching upwards हो रहा है. Punching up, punching down जानते हो ना? हाँ। पंचिंग अप पंचिंग डाउन स्टैंड अप कॉमेडियन से बोला जाता है. अगर तुमको मजाक उड़ाना है तो अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों का उड़ाओ, अपने से कम पावरफुल लोगों का मत उड़ाओ, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे लगता है कि धर्म और धर्म का क्रिटिसिज्म और इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पावर को इग्नोर नहीं कर सकते. और ये बहुत लोग करते हैं, और आमतौर पे वो लोग करते हैं जिनको पावर का पता नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में व्हाइट लोग कहते हैं कि व्हाइट प्रिविलेज डज नॉट हम्म। एग्जिस्ट. इंडिया में हिंदू कहते हैं कि हिंदू प्रिविलेज डज नॉट एग्जिस्ट. हम्म। सो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रिविलेज का पता नहीं है. जो लोग प्रिविलेज नहीं हैं उन्हें पता है प्रिविलेज का मतलब क्या होता है. प्रिविलेज का मतलब समझे बिना, पावर का मतलब समझे बिना इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता. हम इन चीजों को ए और एक्स का इस्तेमाल करके इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर सकते. हम्म। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो हम्म. बंदा है वो सबको क्रिटिसाइज करता है, मतलब हम्म. सारे रिलीजन को इक्वली, इक्वली हम्म. नहीं, मतलब हाँ, सबको रफली इक्वली क्रिटिसाइज करता है। उस हम्म. केस में क्या वो एक्स रिस्पॉन्सिबल हो पाएगा? वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा? वो बंदा सबको इक्वली क्रिटिसाइज हो सकता है करे. सपोज उसके दिन में 24 घंटे हैं, वो 12 घंटे हिंदुइज्म को, 12 घंटे इस्लाम को गालियां देता है. हम्म। वो जो 12 घंटे हिंदुइज्म को गालियां देता है उससे हिंदुइज्म को ज्यादा नुकसान होता है या इस्लाम को ज्यादा नुकसान होता है? हम्म। 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 समझे? हम्म। हम्म। अगर एक गैंडा है और एक हिरन है, और हम्म। तुम कहते हो मैंने तो दोनों को एक एक गोली मारी है, गैंडा बच जाएगा, हिरन मर जाएगा. बिकॉज इट्स अ हाँ। पावर डिफरेंशियल. इट डज नॉट मैटर हाउ मनी बुलेट्स यू शॉट. कुछ कुछ पोजीशंस कल्चरली ज्यादा पावरफुल हैं, और
इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन देने पर भी उन्हें उतना नुकसान नहीं होता है, और कुछ पोजीशंस बहुत वल्नरेबल होती हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन देने पे उनको डबल नुकसान होता है। देयरफॉर अगर तुम इक्वल अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म करना चाहते हो ना, तो तुमको जो पावरफुल हैं उनका डबल क्रिटिसिज्म करना होगा इन ऑर्डर टू मेक इवन अ डेंट, एंड यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर बिहेवियर टुवर्ड्स द लेस पावरफुल पार्टी, बिकॉज तुम्हारा थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी एम्पलीफाई होके उस सारे सिस्टम को बढ़ावा देगा जो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट में काम कर रही है। हम्म समझ में आ रहा है? हाँ। थैंक यू। क्योंकि मुझे मैं बीच में बोलने के बीच में मुझे लगने लगा मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। पर मुझे लगता है कि मुझे रिलीजन के क्रिटिसिज्म में अब जाना ही नहीं चाहिए, सेफ नहीं है इधर, सेफ नहीं है, किसी का भी करना सेफ हाँ नहीं वो है। तो है, सेफ तो कभी भी नहीं था, सेफ कभी भी नहीं था। मैंने हारिस भाई से बोला कि मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन केसेस आए, उसके बाद ना बाबा ना, मेरे को मेरी क्या जान क्या प्यारी है। क्या मैंने उनसे क्या पूछा केसेस था ना आए? कि हम क्रिटिसाइज, अरे वो सिख गुरु ग्रंथ साहिब में सेक्युलरिज्म हो गया था। हम्म, वो तो मुझे तो भी आए थे। हाँ, तो वो सब देखने के बाद मेरे को कुछ नहीं करना, ना मेरे को हिंदुइज्म को कुछ बोलना है। मैं जो बोलूंगा अपने क्लोज सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो करूंगा, बाहर कुछ नहीं। अब बाहर बहुत होगा तो हम्म अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करूंगा कि मैं देखो मैं एथियस्ट हूँ, मेरा ये रीजन है, बस खत्म। अपना व्यू पॉइंट हम्म प्रेजेंट करना, क्रिटिक करना रीजन का, फिलहाल कम, हम्म, फिलहाल ये सब कम रखना है। सो आपको साइंस फिक्शन बहुत पसंद है, ठीक है? तो अगर जी। मैं आपको बोलूं कि आपको एक रूम में बंद रहना है 2 दिन तक, आपके पास कोई फोन नहीं रहेगा, आपको कोई एक साइंस फिक्शन का बुक पिक करना है और एक कोई मूवी पिक करना है, कौन सा मूवी पिक करोगे और कौन सा ये बुक पिक करोगे? 2 दिन तक? हाँ, 2 दिन तक। 2 दिन मेरे लिए बहुत आसान है, मैं तो पूरा हफ्ता इस कमरे से नहीं निकलता हूँ। फिर भी कौन मैं सा बुक आप मैं रिकमेंड करोगे? मैं मूवी पिक नहीं करूंगा, पर मैं ये वाली एक बुक जो अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था ये रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। इट्स कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ टाइम। चिल्ड्रन ऑफ इट्स टाइम। रिटन चिल्ड्रन ऑफ टाइम, इट्स रिटन बाय एड्रियन चाइकोव्स्की। इसका था, कहानी का आइडिया ये है कि ये एक्चुअली सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन के बारे में भी बहुत, हर साइंस फिक्शन बुक सोसाइटी और कल्चर के बारे में होती है काफी हद तक, पर इसमें आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इंसान दूसरे ग्रह को कॉलोनाइज करने के लिए खुद गए नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पेशल स्पेसशिप्स बनाए, उनमें ऐसे चीजें रखी, मतलब पहले तो टेलीस्कोप से पता किया कि किस ग्रह पर पृथ्वी जितनी ग्रेविटी वगैरह है, वो सब पता किया। हम्म फिर स्पेसशिप्स भेज दिए उनकी ओर, सैकड़ों साल पहले, खुद निकलने से पहले, हम्म इस उम्मीद में कि हम उस प्लैनेट पे जाएंगे, उस प्लैनेट पे, इस स्पेसशिप पे ऐसे केमिकल्स हैं जो उस प्लैनेट पे जाके जब रुकेंगे तो वो केमिकल्स वहाँ जो बंदर वगैरह हैं उनकी एवोल्यूशन को एक्सेलरेट कर देगा, और जब तक हम पहुंचेंगे तब तक वो इंसान बन चुके होंगे, और हमें बनी बनाई सभ्यता मिल जाएगी जो हमसे बात कर पाएगी, हमें समझ पाएगी। हम उनको अपने कल्चर बताएंगे, हम उनको बताएंगे कि हमने तुम्हारा निर्माण किया, वो हमें देवताओं की तरह पूजेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। राइट? ये बहुत यूनिक टेक है, पर एक गलती बहुत हो यूनिक जाती है। है, और ये क्या? या पर एक गलती हो जाती है, ये जो केमिकल है ये हाँ। बंदरों की जगह स्पाइडर्स को लग जाते हैं, और जब इंसान वहां पहुंचते हैं तो वहां स्पाइडर्स की सिविलाइजेशन होती है, और वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली होती है। उनके जानी दुश्मन होते हैं चींटियां, जिन्होंने आर्मर हम्म पहन रखे होते हैं और जो जमीन में खनन कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। पूरा अलग कल्चर, पूरा अलग इवोल्यूशन, पूरा अलग सिविलाइजेशन होता है उनका। सो इट्स वेरी कूल। ये बस फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद भी मुझे लगता है 2 और पार्ट हैं इसके। हम्म नहीं, चींटियों और स्पाइडर्स के बीच में अगर फाइट होगा और उस पर मूवी बनेगी तो फिर मजा आएगा देखने में। है, बहुत अच्छे वॉर सीन्स भी हैं, वो और उसमें तुमको फाइट देखा कैसे मतलब, करेंगे? सो चींटियां तो अपने आपस में कम्युनिकेट करती हैं केमिकल्स के थ्रू ना। हम्म। मतलब एक चींटी दूसरे केमिकल, अपने बातें तो नहीं करते वो लोग, तो वो अपने एंटीना के थ्रू केमिकल्स एक दूसरे को देते हैं, और उन केमिकल्स में सिग्नल होते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे हम लोग हम्म वोकलाइज कर रहे हैं। मैं हम्म क्या कर रहा हूँ, मैं अपने गले और अपने मुंह का इस्तेमाल करके हवा को वाइब्रेट कर रहा हूँ, वो वाइब्रेशन इसके थ्रू तुम तक पहुंच रही है, और हम्म तुम्हारे दिमाग में वो इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से तुम उस वाइब्रेशन को डिकोड कर पा रहे हो। हम्म। राइट? सो यहाँ क्या होता है कि चींटियों की बातचीत केमिकल्स के थ्रू होती है, पर स्पाइडर्स केमिस्ट्री सीख जाते हैं, ओ। और वो चींटियों को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब वो एक स्पेशल स्प्रे होता है जो मारते हैं चींटियों पे। अगर चींटियों की आर्मी आ रही है उनकी ओर, आधी आर्मी स्पाइडर्स को ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें यहाँ होना चाहिए वैसे।
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक है ये तो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मूवी में कौन सा? मूवी नहीं लूंगा यार, 2 दिन एक कमरे में मुझे खाली मिल रहा है, मैं बुक्स बुक्स नहीं खुश हूँ। ड्यून तो अच्छी मूवी है। डून अच्छी मूवी है, बट अराइवल भी अच्छी मूवी है। और अगर मैं एक बुक ले रहा हूँ जो इतनी डेंस और हैवी है, तो जो मूवी मैं चूज करूंगा वो थोड़ी लाइट हार्टेड होगी, ताकि मतलब मैं पूरी दिन किताब पढूं, रात को आधे घंटे बैठ के पिक्चर देख लूं, वैसी वाली लूंगा। आप मार्वल मत बोलना प्लीज। नहीं, मार्वल नहीं लूंगा, मार्वल नहीं लूंगा। आई थिंक आई टेक समथिंग लाइक स्टारशिप ट्रूपर्स। ये नाम भी नहीं सुना मैंने। स्टारशिप। स्टारशिप ट्रूपर्स काफी काफी पुरानी फिल्म है। स्टारशिप ट्रूपर्स, इट वाज बेस्ड ऑन अ साइंस फिक्शन नॉवेल आल्सो। स्टारशिप ट्रूपर्स देखी होगी तुमने, स्टार मूवीज पे आती थी बहुत पहले। नहीं, मैं अभी मूवी भी कभी। अवेलेबल है एक्चुअली, नेटफ्लिक्स या ओ, प्राइम, कभी कहीं पे अवेलेबल है। मैं देखूंगा फिर, मैं देखूंगा फिर। देख आपको लेना। मार्वल मूवीज कैसी लगती हैं? अभी तो थोड़ा मार्वल फटीग आ गया है, मतलब 10 साल से देख रहे हैं यार, कितना देखेगा आदमी। और बस वो वहीं पे बहुत हूँ। हौच पौच हो गया है उसमें। नहीं, आई थिंक एज फार एज क्लैरिटी इज कंसर्न्ड वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई और कंपनी इतना कुछ कर रही होती तो उनका हौच पौच हो जाता। हाँ। अब डीसी को देखो, 10 साल से कोशिश कर रही है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही उनकी। उनकी मूवी अच्छी बन ही नहीं पा रही है, बस बीच में एक दो नहीं आता बन है नहीं पा जिसमें रही। लगता है कि क्या मूवी है, उसके बाद फिर हाँ, लगातार बेकार एक्वामैन, बेकार। एक्वामैन अच्छा लगा था मुझे। और दूसरा क्या था? जस्टिस लीग अच्छा था, वो नहीं, स्नाइडर कट। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं, मुझे स्नाइडर अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ओह। बट मुझे एक्वामैन अच्छा लगा था बस, और कुछ कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ये बैटमैन वाली मूवी जो अभी आई है वो। कौन सी वाली? मैंने देखा नहीं अभी तक। ओ, आप देखो, मैंने भी अब तक नहीं देखा, बट मैं बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यू सुन रहा हूँ। अच्छा, देख लूंगा फिर। एनीवे, आज के लिए इतना ही, तो मैं पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। थैंक यू सो जी। मच फॉर डूइंग दिस। आप मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, आकर के इतनी चीज़ों को समझाएं। क्योंकि मैं जब भी किसी गेस्ट को अप्रोच करता हूँ तो मेरे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे उनसे सीखना है। तो मैं, यही कारण था मैं हारिस सुल्तान को इनविटेशन भेजा, यही कारण था कि मैंने कुशल मेहरा को इनविटेशन भेजा, यही कारण था कि मैंने आपको इनविटेशन भेजा। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस मच क्लैरिटी। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड आई होप दैट योर चैनल ग्रोज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओ, आई होप दैट टू। जाओ जा करके इनका चैनल चेक करो, विमो और विमो लाइव, दो यूट्यूब चैनल है, और इनके पॉडकास्ट भी हैं, विमो टॉक्स, स्पॉटिफाई, जी, आईट्यून्स, गूगल हर जगह पॉडकास्ट, अवेलेबल है। सावन पे भी है। आप ये बोलना भूल जाते थे पर मुझे याद है, और गाना पर भी है। हाँ, जियो सावन, गाना.com, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हर कहीं है। हम्म। सो गाइज, प्लीज गो एंड चेक हिज चैनल, और अब मैं रिकॉर्डिंग एड करता हूँ। ओम बाय शांति। बाय। बाय बाय। बाय।